Hello students of class 3. Today I am going to teach you EVS chapter 21, that is families can be different. Children, आज मैं आपको chapter 21 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम क्या है? Families can be different. तरह तरह के परिवार. Till how many? बोलो भाई कितने? Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4, or 2 loudly. Children have to form groups according to the number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तुम ज़रूर जानते होगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाएं, यह खेल खेलते रहो। All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group, Gurleen, Nagarajan and their children Tania and Summer. हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को, गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तानिया और समर। ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर, ये किनका है? गुरलीन की फैमिली का है। अब हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टोरी है, द पीपल इन द पिक्चर you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। सितम्मा। सितम्मा lives in her ancestral house in a small city, Guntur. Her dada, dadi, younger chacha and bua live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his 3 children. Her Taiji died just a few months ago. Her elder chacha and the new chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. Before dinner, Sitamma's mother teaches all the children. Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make a special effort to be together at dinner time. Nowadays, Tauchi's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. In the morning, Sitamma helps her get ready for school. यहाँ पे हम लोग किसकी फैमिली पढ़ रहे हैं? सितम्मा की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सितम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल पर एक हिस्से में सितम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गितम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उनकी ताईजी की मौत हो गई।
उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीतम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीतम्मा के माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब है ये तारा की स्टोरी। हम लोगों ने पहले सीतम्मा की स्टोरी पढ़ी, अब तारा की स्टोरी पढ़ेंगे। तारा Tara lives with her amma and nana in Chennai. Her amma, Meenakshi, is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. When Tara returns from school, her nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework, and also plays with her. During vacation, the three of them go to far off places and enjoy themselves. At times, Tara's Mausi, Mausa, and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit chat. तारा 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 अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करते हैं, में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। कभी कभी तारा मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। ये थी तारा की स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे सारा एंड हबीब। सारा एंड हबीब live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Sarah teaches in a school. Habib's Abbu is retired and lives with them. In the evening, the three of them sit together and watch television or play cards. Abbu enjoys watching television with the others. He enjoys the discussion as well on the holidays. The neighbors' children come to their house and create a lot of fun. Everybody enjoys together. They play games, go out, and at times go for play and movies. सारा और हबीब। यहाँ पे हम सारा और हबीब की स्टोरी जानेंगे। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और सारा स्कूल में पढ़ाती हैं। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिनों पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं। कभी खेल कूद करते हैं, कभी घूमने जाकर घूमते हैं, कभी नाटक देखकर। अब है तोताराम। तोताराम lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai. Totaram and his brothers have come to Mumbai to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Totaram's chacha is liked by everyone. Totaram's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Totaram's dada in the village. Totaram's mother, dada, dadi, chachi and younger brother and sister lives in their parental house in the village. Once a year, Totaram goes to his village. He misses his mother very much. He writes long letter to her. तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम उसके भाई बम्बई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी
यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम भी सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। In the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at home and goes to college. Their father goes to the shop for the day. Kaveri returns from school in the afternoon. She unlocks the house and waits for Krishna. On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. Kaveri goes out to play after doing her school work. On returning, she either plays carom with her brother or watching television. When father returns home, they cook food and then eat together. During vacation, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है और उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। सो बच्चों, हम लोगों ने डिफरेंस फैमिली के बारे में जाना, जैसे कृष्णा कावेरी की फैमिली के बारे में जाना, उनकी स्टोरी जाना, तोताराम की स्टोरी जाना और आपको सीतम्मा की स्टोरी जाना, सारा एंड हबीब और एक है तारा। इन सब की स्टोरी जाना, सभी की फैमिली के डिफरेंसेस के बारे में जाना, सबकी फैमिली में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।